Assalamu alaikum. Welcome to Aga Khan University School of Nursing. This is Dr. Rafat Jan. I welcome you. I see 112 participants have joined. In fact, 13 each minute is going on. One participant is increasing. This is very good participation, and that shows that this is the need of the time. हम यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही दोनों लैंग्वेज रखेंगे. मेरी ये पुरजोर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने क्वेश्चन चैट में लिखेंगे और हम वहीं से आंसर करेंगे. सो प्लीज राइट all the questions in the chat box and we are going to reply your question. We always make sure that we finish an hour, so finishing time is 5 o'clock. And if needed, this will be the series of presentations. This is just a start. This is just a start. And we have, mashallah, two fabulous presenters with us. और जिन लोगों ने इस पे बड़ा काम किया है, आप सबको पता है कि डॉक्टर रुबीना बरोलिया जो हैं, she has worked with her team very hard for advanced nurse practitioner model. और डॉक्टर रुबीना प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट डीन हैं हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस की. उनके साथ आज हमारे साथ जो दूसरे एमिनेंट प्रेजेंटर हैं वो डॉक्टर आसिम बिलगामी हैं. डॉक्टर आसिम हमारे प्रोफेसर हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं. और डॉक्टर आसिम की मौजूदगी जो है वो हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे रही है. तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रुबीना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना प्रेजेंटेशन दें और उसके बाद डॉक्टर आसिम होंगे और हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे. I would like to say once again that after Dr. Rubina's presentation, Dr. Asim will talk and then we can ask some question and answer. And after that, we will finish sharp at 5 o'clock. Thank you so much. May I request Dr. Rubina Barolia to please start. Thank you, Rafat, for the introduction. और I will use both the language as I'm looking at the comments that वो कह रहे हैं कि आप उर्दू में बात करें, तो मेरे लिए आसान है दोनों लैंग्वेज यूज़ करना. So मैं सिर्फ 10 minutes थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं थोड़ा नर्सिंग में. And then Dr. Asim is in our team who is working on advanced practice nursing with his team as a chief medical officer, and my team also includes Chief Nursing Officer of Aga Khan University. So I would like to acknowledge her. In due sessions, we'll also invite Chief Nursing Officer as well. तो सबसे पहले तो ये presentation outline है कि introduction of APN, what is APN, why do we need APN, what will be the process of planning and consultation and the timeline of APNs. अच्छा, APNs एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग, ये एक रजिस्टर्ड नर्स है. प्लीज बी श्योर दैट एडवांस प्रैक्टिस नर्स इज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड नॉट अ डॉक्टर. So not a mini doctor or a doctor, she or he is a nurse who has expert knowledge, able to make complex decisions, have certain clinical competencies which are contextually relevant. जो हमारे पाकिस्तान के मुताबिक जो contextually roles है registered nurse का, उसको expand करना है, उसकी practice को expansion देना है, तो ये actually advanced practice nurse है. इसमें generalist model भी है और specialized model भी है. Generalist model means internal medicine within the hospital, inpatient areas, और specialized में जैसे cardiology में हो गया, oncology में हो गया, diabetes में हो गया, hypertension में हो गया, लेकिन उसकी minimum education is master's degree. So without Masters of Science in Nursing with a clinical track, we would not be able to call that nurse as an advanced practice nurse.
اس میں ICN جو انٹرنیشنل کاؤنسل آف نرسنگ بولتا ہے 4 رولز آتے ہیں. کلینکل نرس اسپیشلسٹ, سرٹیفائڈ نرس پریکٹیشنر جو کہ APN ہے یا نرس پریکٹیشنر ہے, نرس اینستھیٹسٹ ہے, اور سرٹیفائڈ نرس مڈ وائف. جو آج ہم پروگرام کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ APN یا سرٹیفائڈ نرس پریکٹیشنر کی بات کرنے جا رہے ہیں. صرف یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ اس وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہر جگہ APN چل رہا ہے. ایون انڈیا میں, بنگلہ دیش میں آلسو دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو این APN ان کارڈیولوجی اینڈ APN ان انٹرنل میڈیسن. چائنا میں دے ہیو APN in 4 areas. So in Southeast Asia, if you see, the literature is full of creating this APN model to improve the quality of health and to improve the standard of health in the healthcare system. تو یہ بہت ضروری ہے. اب پاکستان میں آپ دیکھیں کہ یہ پیراڈائم جو ہم کو شفٹ کرنا ہے, why we need. So if you see in Pakistan, our professional roles, there are 3 main roles of nurses here. One is nursing management. Like if you go from staff nurse, آپ انچارج نرس بنتے ہیں, ہیڈ نرس بنتے ہیں, ڈائریکٹریٹ بنتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ بنتے ہیں, and that's it. When you go for the nursing education, you have a clinical instructor, then you have a senior instructor, then you have professorship تک آپ آتے ہیں. بٹ فار دا کلینکل پریکٹس, جو کہ مین کرکس ہے نرسنگ کا, جہاں پر آپ کی نرسز پہچانی جاتی ہے, وہاں پر آپ کا کوئی رول نہیں ہے. آپ اسٹاف نرس ہوتے ہیں, اسٹاف نرس کے بعد ایدر یو وانٹ ٹو بیکم انچارج نرس سے ہیڈ نرس تک چلے جائیں, ڈائریکٹر تک چلے جائیں, یا آپ چلے جائیں ایجوکیشن میں پروفیسر تک چلے جائیں. لیکن وہ ساری نرسز جو کلینکل میں بہت اچھی ہیں, ہینڈس آن میں دے آر ویری ویری اسپیشلائزڈ اینڈ دے لو کلینکل, they love to take care of the patient, they want to become the patient care provider. تو اس میں we do not see any role. تو پھر کیا ہوتا ہے, رول کانفلکٹ ہوتی ہے, they go out, وہ باہر چلے جاتے ہیں because they don't want to excel in education, they don't want to go in the management. But we do not have anything for these nurses in the ground, in patient area اور out patient area. تو یہ ہمارے پاس اس کی لیڈر کی بہت کمی ہے. کلینکل پریکٹس ایریا میں دیر از نو لیڈر فار دا کلینکل نرسز, اینڈ وچ PNC از اسٹرائیونگ دیٹ وی شوڈ کریٹ اے لیڈر. وی ڈو ہیو اسپیشلسٹ رول, لیکن اس اسپیشلسٹ رول کا کوئی کیریئر نہیں ہے. تو اس اسپیشلسٹ رول کو ہم APN میں لانا چاہ رہے ہیں, جو کہ PNC آئی تھنک 3 to 4 years سے اس پہ محنت کر رہی ہے. And then we are in Aga Khan University, we are also working. اب ہم پیشنٹ کیئر میں جائیں تو پرائمری کیئر میں دیکھیں سمٹم مینجمنٹ, ایکیوٹ کیئر, آنکولوجی, کارڈیولوجی, اینڈ دوز ایریا where there is no access. ریموٹ ایریاز میں دیکھیں وہاں پر افورڈیبل کیئر نہیں ہے, ڈاکٹر کی وزٹس نہیں ہیں, وہاں پر کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز نہیں ہیں. تو اس ایریا میں بھی دیر از اے نیڈ. سو آپ ان بٹوین these two there is a dire need for us to have a career ladder for all those nurses who are working in inpatient and outpatient area and who want to excel their career in patient care. اور اگر ڈیٹا جو پاکستان کا اور جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو میں نے نکالا ہے, اس میں کہتے ہیں کہ ساری نرسز جو ہے نا, وی ہیو ون کوشچن دیٹ آل ناؤ نرسز ول بیکم APN. نو, دس APN از ناٹ فار آل نرسز. اف وی سی, جو کہ 4 to 5% جو ہے وہ آف آل دا نرسز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ ان ابراڈ, دے گو فار ہائر ایجوکیشن. دیٹ مینس دے آپٹ فار ماسٹرز. آؤٹ آف دیز 4 to 5%, only 1 to 2% becomes APN. So we are not talking about the full cohort of RNs. ہم سارے nurses cohort کی بات نہیں کریں کہ وہ جا کے APNs بن جائیں گی. No, we have a strict course, we have a strict curriculum, credential, جس پر ہم بعد میں بات کریں گے, اور وہ اپنا choice of career لے گی.
today we nurses are not having the choice of career. उनके पास कैरियर चॉइस नहीं है. वो नर्सिंग करने के लिए इसलिए नहीं आते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि बस पेशेंट की केयर की, या तो आप एजुकेटर बन गए या तो हेड नर्स बन गए, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है. सो दे डू नॉट सी दिस प्रोफेशन एज अ वैल्यूएबल प्रोफेशन. दे डू नॉट हैव एन सेटिस्फैक्शन, रिटेंशन नहीं है. दे गो आउट एंड दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूटर to the healthcare system. So there is a need. We all know outside and inside there is a need, particularly in low income country और low income जो है वो उसमें ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर care इतनी scarce है. And then इसमें shortage of nursing भी improve होगी. If nurses will see their career, will see their role as a valuable role, as a esteemed role, they will definitely enter into the nursing profession. Pakistan Nursing Council, as I said, that have actively advocating, and now you have seen that they have passed an act also, but we have to go it very, very slowly. We will have to first do the pilot program, and we are willing to do the pilot program. We will see, and then after doing the pilot program, we'll see कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, इनको क्या चीज़ें credential कर दें, क्या ना कर दें, and then we are going to scale up this program to full Pakistan. सो सिर्फ मैं आपको जो ओवरऑल बता दूं, जो लेस मॉडल है, इसमें सबसे पहले तो मास्टर्स प्रोग्राम इन क्लिनिकल केयर में ये जो 2 कंपोनेंट है A and B, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ मस्ट. अगर आप मास्टर्स क्लिनिकल ट्रैक से कर रहे हैं तो ही आप APN के कैरियर लैडर में जा सकते हैं. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव इनटू दैट कैरियर लैडर, जिसमें आपको एडवांस फिजिकल असेसमेंट, एडवांस फार्माकोलॉजी, एडवांस पैथोफिजियोलॉजी एंड एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिकम दिया जाता है. देन you also need a certification of maybe thousands or 700 to thousands clinical hours. आपको वो clinical hours under mentorship करने हैं, under supervision करने हैं. इस वक्त हमारे पास चूंकि कोई APN नहीं है, तो we have to do this supervised clinical hours under physician model. तो हम physicians के साथ under supervision हम ये clinical hours करवाएंगे. Then they have to go through the exams. उनके एग्जाम्स होंगे, उनकी ऑस्की होगी, उनकी असेसमेंट होगी, एंड देन दे आर क्रेडेंशियल, गेटिंग द क्रेडेंशियलिंग प्रिविलेज टू वर्क एज एन APN. So do not consider all of those who think that this is very easy. If you do nursing, you can become doctor, you can write a medication, you can open the clinic. This is not happening. This is something a very curriculum specialized practicum based with lot of exams and with lot of clinical assessment. तो इसलिए जो हमने प्रोग्राम रखा है, इसको हमने कहा है क्लिनिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम. सो जो भी मास्टर्स क्लिनिकल ट्रैक में हैं, they have to do this 1 year of clinical residency certification program. शुरू में हम इसको 1 year का रखते हैं. Then we will move this program into the master's program once we will do the pilot program. तो उसका स्कोप जो है, जो अंडरलाइन है, क्योंकि मैं पूरा स्कोप तो नहीं बता सकती इस 10 minutes में, but what we are starting, ordering of the drug, interpreting the diagnostic, prescription medication, and performing procedures. All those things they will learn with the physician, they will sign off with the physician, and also we will give the supplementary prescription. Supplementary prescription का मतलब ये कि अगर APN ने कोई दवाई लिखी तो उसको को-साइन जरूर करना है उसके साथ जो कि इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर है. इस वक्त हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर फिजिशियन है, सो फिजिशियन विल बी एबल टू को-साइन मे बी इन 10 hours or 12 hours after writing this prescription by APN. So ये कुछ regulations हैं that we have to make it, and these regulations we have to be credentialed and instituted by Pakistan Nursing Council once we do this pilot program. तो अगर हम देखें यहाँ पर सिर्फ
जो हमने मास्टर्स प्रोग्राम पहले शुरू किया था, वी हैड अ जेनेरिक प्रोग्राम जिसमें हम हर चीज़ कराते थे. नाउ वी सी दैट वी नीड टू हैव अ क्लिनिकल एंड एजुकेशन. अब इसमें हम सबको ये सोचना ज़रूरी है. 72 ग्रेजुएट्स हमारे पास क्लिनिकल ट्रैक से निकल चुके हैं सिर्फ AKU से. आगे से आगे और निकलते जाएंगे. वी हैव नाउ 4 to 5 मास्टर्स प्रोग्राम एंड नाउ लॉट ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर, मास्टर्स ग्रेजुएट्स, व्हाट दे विल डू, सबके सब तो एजुकेशन में नहीं जाएंगे, सबके सब तो प्रोफेसर्स नहीं बनेंगे. सो नाउ दीज मास्टर्स क्लिनिकल ट्रैक ग्रेजुएट्स, व्हाट दे विल डू, व्हाट इज द कैरियर. जो लोग मास्टर्स करके दोबारा स्टाफ नर्स बनते हैं, देयर इज लॉट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन. वो दोबारा स्टाफ नर्स की पोजीशन पे नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू इनहेंस देयर कैरियर. तो उनके कैरियर के लिए ज़रूरी है, अगर AKU के 72 ग्रेजुएट्स जो है इस वक्त क्लिनिकल ट्रैक एरिया का वेट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर पाकिस्तान में सारी यूनिवर्सिटीज़ जो मास्टर्स ग्रेजुएट हैं वो वेट कर रही है कि हमारे पास कोई क्लिनिकल एरिया में ऐसा ट्रैक आए कि वी कैन स्टार्ट दिस APN. सो इसके लिए हमने टास्क फोर्स बनाई. जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैड अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पीपल हु हैव डन द वर्क कि किस तरह से हम प्रोग्राम को चलाएं. सो ये क्लिनिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम हम चलाएंगे एंड दिस इज द 48 वीक्स क्लिनिकल प्रोग्राम है. इनिशियली वी वांट टू स्टार्ट विथ इंटरनल मेडिसिन जो कि इन पेशेंट्स भी हैं और आउट पेशेंट्स भी हैं. All residents will move from medical, surgical and critical care areas and a lot of extensive competencies. वो सारी competencies हमने list down की हैं कि कौन सी roles जो है वो expansion होंगे. Like for example CVP monitoring तो nurses करती हैं, but then maybe CVP insertion, CVP removal, कोई और चीज़ arterial line maybe removal. So ये सारी monitoring जो है we will expand their role, but with a lot of sign off, lot of OSCEs, lot of practice and lot of exams. तो ये हमने इनके सारे वार्ड्स भी रोटेशन के लिए रखे हैं so that we know that ये 4 themes, patient and disease management, they will be able to do the full disease management from patient assessment till rehabilitation, patient safety, and we have also include health promotion and disease prevention. Community में अगर जाके कोई disease prevention model करना है तो these APN would be willing to do and will be very helpful in community settings as well. So ये जो continuous assessment की जो मैं बात करी थी कि without assessment, without direct observation of all the procedures and the credential, they won't be able to go for the credential. So after fulfilling all the assessment, APN will undergo the credentialing and privileging processes. इसके बगैर आप APN को practice नहीं कर सकते हैं. वही PNC ने approve किया है और वही PNC जो है जब regulation बनाएगी तो ये credentialing system जो है वो PNC अपने under लेगी. So inshallah, we going to launch this program in 2024. We will market this program, advertise this program. Currently, we will have a limited seats, but inshallah, down the road, we'll increase this program. And once this program will scale up, then other universities will be able to take this program up. So in last, I just want to read this Chancellor quotation that I have long felt the enhancement of the nursing profession to be absolutely critical in the improvement of healthcare in developing world and in the Islamic world. तो way forward जो है वो यही है कि we need to enhance the profession and dignify this great profession. Nursing is a great profession. We need to have a career enhancement plan. With that, thank you very much. Thank you so much, Dr. Rubina. You have given us a very comprehensive and understanding in the nutshell. May I request now, Dr. Saab, आप कुछ पहले कहना चाहेंगे या? So thank you very much, Dr. Rifat, मुझे बुलाने का इसमें. और it's really an honor to be here and to be part of this thing. Actually, it's an honor to be part of this whole
Um, I mean, it's an honor to be part of this whole program, to be part of the whole discussion and the talk and everything else over the past several years that we've been working on this together. And I think that this is, ये सिर्फ नर्सिंग स्कूल का या नर्सिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबका प्रॉब्लम है और इसको हम सब ने सॉल्व करना है. और इसीलिए जो AKU में जो ये प्रोग्राम जो तश्कील किया गया है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है. हालांकि स्कूल ऑफ नर्सिंग इसको लीड कर रहा है, लेकिन 2 पार्टनर्स हैं इसमें. एक पार्टनर हॉस्पिटल है, तो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इसमें बहुत ही क्लोज पार्टनर है इसमें, और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज जो है. तो ये सिर्फ एक नर्सिंग इनिशिएटिव नहीं है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है. और हम सब साथ इसमें इसलिए हैं कि हम सबको पता है कि इससे फायदा सबको होगा, और इसमें काम हम सबको मिलके करना है. जैसे डॉक्टर रुबीना ने कहा कि जो एजुकेशन है वो शुरू के सालों में जो ओवरसाइट और ट्रेनिंग और मेंटरशिप जो है वो डॉक्टर्स देंगे, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान में हमारे पास एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग है ही नहीं. तो अगर एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग नहीं है तो इनको जो ट्रेनीज हैं उनको ट्रेन कैसे किया जा सके. लेकिन इसमें भी हमने क्लियरली उसमें हमने लिमिट्स रखे हैं. हमने जो ट्रेनर्स होंगे, जो डॉक्टर होंगे, उनको जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, जो ट्रेनिंग के एलिमेंट्स हैं वो सिखाए जाएंगे उससे पहले कि वो ट्रेनिंग शुरू करें उसमें. और इस वजह से जो है ये नहीं है कि हम, जैसे हम डॉक्टरों की रेजिडेंसीज होती हैं या फेलोशिप्स होती हैं, हम यहाँ पे उसमें अटैच नहीं कर रहे हैं इसको. But what we are doing here is we are creating a separate track for clinical training of advanced practice nurses. हम ये चाहते हैं कि ये part of the team हो. इसमें ना सिर्फ एडवांस प्रैक्टिस नर्स तो है ही हैं, मगर उसके साथ आपके ट्रेनीज हैं, जो मेडिकल ट्रेनीज जो हैं वो भी साथ में होंगे उसी टीम में, और उसके साथ आपके जो फैकल्टी है, मेडिकल कॉलेज फैकल्टी है, वो भी उसमें होगी साथ एज द मेंटोर्स. और आगे चल के इसमें जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग फैकल्टी आएगी, जो हमारी ट्रेनीज निकलेंगे इसमें से, जो ट्रेनर्स बनेंगे आगे चल के, वो भी इसमें पार्ट एंड पार्सल होंगे. एंड इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो बेड साइड नर्सेस का है, क्योंकि एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस, डॉक्टर्स, फैकल्टी जो भी हैं, ये उनके बगैर काम नहीं कर सकते. तो एक टोटल पार्टनरशिप होनी है जिसमें ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट साथ हों इसमें. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस क्यों? बहुत सारे लोग पाकिस्तान में तो है नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में, जैसे डॉक्टर रुबीना बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज में तो अब उभर के आ रहा है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें तो कई साल से है. मैंने खुद, क्योंकि मैं बाहर के मुल्क में काम किया हुआ है, मैंने अमेरिका में भी और मिडल ईस्ट में भी, और दोनों जगह जो है आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद एडवांस प्रैक्टिस नर्सेस, एंड दैट हैड बीन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. उनसे मैंने बहुत सीखा है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उसके अंदर, उनको एक वो हाई लेवल पे वो काम करती हैं किसी एक स्पेशलिटी में. तो उनसे उनका एक्सपीरियंस कभी कभार तो डॉक्टरों से ज्यादा होता है, जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनसे भी बहुत ज्यादा होता है. एंड तो उनसे फिर एज रेजिडेंट्स मैंने सीखा है उनसे. तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं किसी को, इसमें ये बहुत ज़रूरी है. और जब भी कोई चेंज आता है तो उसके डिट्रैक्टर्स होते हैं.
لوگ ہوں گے جو کہ اس چیز سے یا ڈرے ہوئے ہوں گے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا ان کو یا کوئی اور پرابلمز ہوں گی. مگر میں یہ جتا دوں آپ سب کو کہ اس میں نہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایک رول کو تبدیل کر کے کوئی اور رول بنا رہے ہیں. ہم ایک برانڈ نیو رول کریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کلینکل کیئر بہتر ہوگا اور کچھ نہیں. That's it. So I think کہ this is something that must happen. This must happen because clinical care in Pakistan must improve. And for that, everybody has to move forward. Thank you. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ نے 2-3 بہت خوبصورت باتیں کی. پہلی چیز یہ کولابریٹو ماڈل ہے, یہ ایک پارٹنرشپ کا ماڈل ہے جس میں ڈاکٹرز نرسز سب ساتھ میں لرننگ بھی کریں گے, کیئر بھی پرووائڈ کریں گے, اور ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں پیشنٹس کو فائدہ ہوگا, ان کی فیملیز کو فائدہ ہوگا, اور جو بھی ہمارے آؤٹ کم ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا. دوسری بات جو آپ نے بہت امپورٹنٹ کی, کسی کا نہ ہم رول پہ یعنی کسی کے پاؤں پہ ہم پاؤں نہیں رکھ رہے ہیں اور نہ ہی ہم کسی سے ان کے ہاتھ سے کچھ لے رہے ہیں, بلکہ ایک یہ نیو رول کریٹ ہو رہا ہے. سو فار ایگزامپل ہماری پریکٹس میں پاکستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا ہے, اور میرا مڈ ویفری کا جو ایکسپیرئنس ہے, بہت سارے مڈ وائف کو میں مڈ وائف پریکٹیشنرز ہی بولتی ہوں, جہاں پہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہی لوگ جو یہاں سے یا کسی بھی انسٹیٹیوشن سے سیکھ کے جائیں گے تو وہ جو بینیفٹس دیں گے, کیونکہ ہر پیشنٹس اور ہر فیملی ٹریول کر کے ٹرشری ہاسپٹل تک نہیں آ سکتے. تو میری نظر میں ایڈوانس پریکٹس رول جو ہے وہ اس کا جتنا پریونشن اور پروموشن میں یہ نرسز کام کر سکیں گی ان سے بہتر کوئی نہیں کرتا ہے, کیونکہ ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور نرسز ہمیشہ پریونشن اور پروموشن کی طرف ہوتی ہیں. اور زیادہ سے زیادہ آپ یقین کیجیے گا ہمیں جو ریکویسٹ آتی ہیں مثلاً ایلڈرلی کیئر میں, جو ہماری اب بہت ساری پبلک جو ہے یا پاپولیشن اب ایلڈر ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ, جو بھی کوالٹی آف لائف, تو ان کو بہت سارے لوگ اپنے گھروں پہ ہی رہنا چاہتے ہیں, اور بہت ساروں کے بچے جو باہر ہوتے ہیں وہ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آیا کیا وہ نرسز ہیں جو یہ کر دیں اور چھوٹی چیزیں, اور یہ تو ایلڈرلی کیئر ہے, پریونشن سائڈ کا کیئر ہے, تو یہ تو بہت ہی جو پارٹنرشپ ماڈل ہے اس میں بہت ہمارا کام آئے گا. میرے پاس اچھا میں آپ سب ماشاءاللہ اب 194 ہو گئے, میں آپ سب کو بتا دوں آج ہمارے CMO یعنی چیف میڈیکل آفیسر ہیں, اور انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ٹائم ہماری CNO چیف نرسنگ آفیسر مس خیرالنساء ہدا ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گی. تو جس طرح آج ڈاکٹر صاحب نے پارٹنرشپ اور کولیبریشن ماڈل ڈاکٹرز کے ساتھ کہا ہے, تو وہ ہاسپٹل میں نرسنگ لیڈرشپ کی بات کریں گی, اور کچھ رولز وہ کس طرح سے ہاسپٹل میں بیڈ سائڈ نرسز اور یہ نرسز مل کے کام کریں گی. اس میں کچھ کوشچنز آ رہے ہیں جو میں آپ سے ایک چیز ایڈ کر, سوری سو ہم نے جو اب جو پروگرام جو ڈاکٹر روبینہ نے پورا جو کریکولم آؤٹ لائن کیا ہے اس کا, ہم نے بہت سوچ سمجھ کے بہت ہی ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہم ان پیشنٹ میڈ سرج ماڈل پہ لے کر آئیں گے. اس میں جو ہے جس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے اس میں پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ ہر چیز کریں گے, ان پیشنٹ وہ میڈیسن کی بھی کریں گے, ICU بھی کریں گے, ان پیشنٹ سرجری بھی کریں گے, کچھ آؤٹ پیشنٹ ایکسپیرئنس بھی رہے گا, اور اس کے بعد وہ 3 ٹریکس میں چلے جائیں گے, میڈیسن ٹریک, سرجیکل ٹریک اور کریٹیکل کیئر ٹریک.
हमें बहुत बहुत सवाल हमारे पर उठे कि ये क्यों चूज किया आपने. उसकी भी एक वजह थी. सबसे पहली वजह तो ये है कि ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है. और इसमें जो है हम ज्यादा उन पे नजर रख सकते हैं. जो हम कर रहे हैं एज टीचर्स और जो वो कर रहे हैं एज ट्रेनीज, उस सब पे हम कंट्रोल ज्यादा रख सकते हैं. मगर मैं आपको बताऊं डॉक्टर रिफत, इतनी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं. जब भी हम ये प्रेजेंट करते हैं किसी भी फोरम में, तो वो पीडियाट्रिक्स में क्यों नहीं है, गायनोब्स में क्यों नहीं है, ऑन्कोलॉजी में क्यों नहीं है, न्यूरोलॉजी में क्यों नहीं है, डायबिटीज में, तो सबको ये अंदाजा है कि इनकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट सब स्पेशलिटीज में कितनी ज्यादा है. और अब जवाब हमारा ये होता है, हम सब चीज एकदम से शुरू नहीं कर सकते. You know, we take one step at a time, और पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरे पे जाएंगे. So the idea is, let's start with this, let's do it in a controlled manner, और फिर फैलाएं इसको. मैं आज अपना एक्सपीरियंस बता दूं. व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, तो वाइस प्रेसिडेंट पीएमडीसी आए थे और कोई 1-1.5 घंटे तक एक क्वेश्चन उठा. उनका, मेरे पास 3 नर्सेज हैं डायबिटिक केयर में और वो मुझसे भी अच्छा केयर देती हैं, हिस्ट्री भी वही करती हैं, प्रिस्क्रिप्शन मैं जाके एक साइन कर लेता हूँ. तो हम ऐसी नर्सेस के टाइटल चेंज करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने उस वक्त कहा था क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, और बहुत सारे हमारे लोगों ने जवाब में कहा कि जी हमारे पास 18 प्रोग्राम हैं या 20 प्रोग्राम हैं, मगर उनकी बात टाइटल से रिलेटेड थी, जो एक्सपर्टीज. फिर ये जो लेस मॉडल आप सबको डॉक्टर रुबीना ने बताया, जिस तरह से एडवांस प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नर्स है, इसी का एक हिस्सा क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट है. और क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट और एडवांस प्रैक्टिस नर्स का जो मेन फ़र्क होता है वो प्रिस्क्रिप्शन और नॉन प्रिस्क्रिप्शन वाला होता है. तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इनको ज़रूर बताएंगे. और डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा बयान किया कि पहले हम इंटरनल के ये 3 रखे हैं. ये तो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उससे जो इनकी ट्रेनिंग होगी ना, शुरू में हम जो भी एडवांस प्रैक्टिस नर्स बनाएंगे. हमारे पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर मेड्रीन शोबर आई थी, जो यहाँ पे डायरेक्टर भी थी. तो उन्होंने कहा कि हम, और वो माशाल्लाह एक्सपर्ट, उन्होंने कहा हम हर कंट्री को गाइड करते हैं कि अगर ये मॉडल सेटअप करना है तो फेलियर वाला नहीं बनाना है. तो फेलियर कब जाता है? जब नॉन कॉम्पिटेंट लोगों को हम एक पेपर थमा दें. लेकिन उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा ये सक्सेसफुल होगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा था clinical practice, clinical practice, clinical practice, and there is no way out of clinical practice. और उन्होंने कहा competency भी assess clinical site पे ही होनी चाहिए, तभी ये मॉडल सक्सेसफुल होगा. अगर ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं होगा, और मैं आप सारे लोग जो इधर प्रेजेंट है, मैं आपको बता दूं, अगर जो डॉक्टर रुबीना ने कोर्स आउटलाइन और ये बताई हैं, लेने को तो कोई भी ये पेपर लेके और कहे कि ये हमारी कोर्स आउटलाइन है एडवांस प्रैक्टिस नर्स की, बट अनलाइक बैचलर्स मास्टर्स जर्नल प्रोग्राम, this is not a typical paper based program. This is very heavy clinical and competency based program. और दुनिया भर में स्पेशली जब अमेरिका से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, वो आयोवा यूनिवर्सिटी से जहां मैं पढ़ रही थी, तो वहां पे लाइसेंचर की जब बात आई, तो जिस तरह हमारी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, वहां पे NLN है, नेशनल लीग ऑफ नर्सेस, उन्होंने कहा था हम जर्नलिस्ट का लाइसेंस दे सकते हैं, हम स्पेशलिस्ट का नहीं दें. और इन्होंने स्पेशलिस्ट लाइसेंस, क्योंकि एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर, जैसे डॉक्टर साहब ने 3 स्पेशलिटी बताई, तो स्पेशलिस्ट का लाइसेंस बेहतर होगा कि एग्जाम्स लाइसेंस. इसीलिए लेस मॉडल उन्होंने लाया. एजुकेशन देना, एग्जाम लेना, लाइसेंस देना, वो इन्हीं के क्लिनिकल एक्सपर्ट्स, इन्हीं के एक्सपर्ट्स हों, वो रिकमेंड करें, वो इनको क्रेडेंशियल करें, वो इनसे एग्जाम्स लें, बोथ प्रैक्टिस और उसका, क्योंकि हम जर्नलिस्ट का लाइसेंस देते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे, जो डॉक्टर रुबीना क्रेडेंशियलिंग की बात कर रही थी, आने वाले दिनों में हम डॉक्टर आसिम को कहेंगे हम
अपने आगा खान यूनिवर्सिटी में जो क्रेडेंशलिंग सिस्टम है और प्रिविलेजेस हमारी CNO और डॉक्टर आसिम को या वो खुद हो या इनके रिप्रेजेंटेटिव हो, हम आपको क्रेडेंशलिंग और प्रिविलेजेस सिस्टम जरूर बताएंगे और क्रेडेंशलिंग मिलना ही गारंटी है कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एट पार लेवल है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पहला क्वेश्चन जो इसमें मैंने देखा है डॉक्टर रुबीना, वो इस कोर्स के बारे में है और इस कोर्स के बारे में ये है कि क्या इस कोर्स की कोई फीस वगैरह है, और ये कोर्स ये मैंने देखा है। टू स्टार्ट विथ अभी हमने इसकी फीस नहीं रखी है इनको, इनफैक्ट सिंस दे विल बी द पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स, ये वर्क फोर्स का पार्ट होंगे तो दे विल बी गिवन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड, उनको स्टाइपेंड मिलेगा बिकॉज इसके क्लिनिकल आवर्स जो हैं वो डे एंड नाइट 12 आवर्स डे शिफ्ट एंड 12 आवर्स नाइट शिफ्ट होगी, सो दे विल बी द पार्ट ऑफ वर्क फोर्स। तो शुरू में तो हमने नहीं रखी बिकॉज इन द पायलट प्रोग्राम, बट वंस इट विल बी स्केल्ड अप तो फिर हम देखेंगे कि हम या तो इसको मास्टर्स के साथ लिंक कर लें जहाँ पर ऑलरेडी फीस है, या तो दिस वुड बी फीस बेस्ड, सो दैट वी विल डिसाइड लेटर, बट करंटली देयर इज नो फीस, विल बी गिवन स्टाइपेंड बिकॉज दे विल बी कंसिडर्ड एज अ वर्क फोर्स। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन है MSN जो यहाँ जो किसी भी MSN प्रोग्राम से निकले, कैन दे ऑप्ट दिस ऑप्शन? MSc clinical track program, those who have done the clinical courses which are advanced pathology, advanced pharmacology, advanced health assessment and the clinical track hours 500 hours, they can only enter to this program. प्लीज डॉक्टर रुबीना ये भी एक्सप्लेन कर दें जो ऑलरेडी मास्टर्स करके जा चुके हैं उनके लिए अब ये प्रोग्राम कि ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगी। उसके लिए एडमिशन के लिए वी हैव एडमिशन टेस्ट, तो वो जो एडमिशन टेस्ट दे हैव टू पास, once they will pass the admission test they will go for the interviews and then there will be a selection process. Dr. Asim, if you देखें, अभी हम बहुत ही छोटा शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 6 कैंडिडेट हम लेंगे अभी। हमारे यहाँ से ही, जैसे डॉक्टर रुबीना ने बताया, more than 70 people have already completed and passed out of the master's program, clinical track program. मगर हम 70 को 70 ले नहीं सकते शुरू में, क्योंकि हमें उस पर बहुत कंट्रोल रखना है, बहुत हम पे उस पर नज़र रखनी है। ये पायलट है और हमें खुद सीखना है जैसे कि हम सिखाते जाएं साथ साथ। तो अभी जो है हम इस पे इसको बहुत ही छोटा रख रहे हैं। अगले 2 साल के लिए there will only be 6 candidates or six people who will be inducted into this program on a yearly basis. उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको बढ़ा सकते हैं नहीं, और बढ़ाना जो है वो दोनों तरीके से होएगा। वो नंबर्स भी होंगे कि आप, हो सकता है हम 6 से 10 चले जाएं या कुछ और हो जाए, मगर उसके साथ साथ उसमें जो है हम जो कोर्सेज हैं या स्पेशलिटीज हैं जो उसको भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा आपसे कि इतने लोगों ने हमसे कहा है कि हमारा भी करें, तो अभी हमने सिर्फ हॉस्पिटलिस्ट मेडिसिन, हॉस्पिटल सर्जन और क्रिटिकल केयर रखा है। हो सकता है हम पीडियाट्रिक्स और गायनॉब्स और ऑन्कोलॉजी या न्यूरोलॉजी या जो कुछ और है वो आगे बढ़ा सकें। तो दोनों तरह से आई थिंक हम बढ़ा सकते हैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी जो लाइसेंसिंग है वो PNC करेगी और HEC रिकग्नाइज करेगा। डॉक्टर साहब, अभी भी तो आप लोग स्पेशलाइजेशन करें क्लिनिकल, उसका HEC से क्या लिंक है? और डॉक्टर रुबीना फिर आप PNC के लाइसेंस के साथ। देखिए, लाइसेंस श्योर जो होता है उसका ताल्लुक आपकी रेगुलेटरी बॉडी से होता है, तो यहाँ पे PNC हो गया। वो डिग्री जो है वो HEC से ताल्लुक है उसका। सो MSc क्लिनिकल ट्रैक जो है वो HEC accredited है। वो उसी तरह जैसे कि
बैचलर्स इन नर्सिंग है या MBBS है, वो सारी चीजें जो हैं ये HEC से एक्रेडिटेड होती हैं। मगर जो लाइसेंश्योर है वो अगर डॉक्टर हैं तो वो PMDC से होगा, अगर नर्सिंग है तो PNC से होगी। सो ये फर्क है दोनों में। एक एडिशन ये कर दूं कि सिंस ये हम 3-4 साल से ये PNC से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब एक्ट में चूंकि आ गया है, PNC रेगुलेशन बनाएगा, क्रेडेंशियलिंग करेगा एंड देन लाइसेंस भी देगा। सो बट दैट कम्स आफ्टर पायलट प्रोग्राम। जब हम पायलट प्रोग्राम कर लेंगे उसमें हमारी जो फिजिबिलिटी एंड सजेशंस होंगे, उसके बाद PNC रेगुलेशन बना के एंड देन एक बोर्ड या एक कमेटी बना के देन दे विल गिव द क्रेडेंशियल द लाइसेंस टू प्रैक्टिस। यस। एक और क्वेश्चन है, वुड द APN डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम AKU बी अटेस्टेड बाय HEC अप्रूव बाय PNC? तो वो तो आपने आंसर कर दिया, लेकिन अभी तक हम डिग्री तो उसमें नहीं ये ऑफर करते। सर्टिफिकेशन है, तो दिस इज 1 ईयर सर्टिफिकेशन। बिकॉज आप लेस मॉडल में देखें, एजुकेशन है, एजुकेशन का कंपोनेंट हमारा कंप्लीट है कि मास्टर्स रिक्वायर्ड है। जो सर्टिफिकेशन का कंपोनेंट है दैट इज 1 ईयर क्लिनिकल सर्टिफिकेशन, और फिर एक लाइसेंसर का कंपोनेंट है। ये 2 कंपोनेंट पे हम काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेशन पे AKUH पायलट करेगा एंड स्केल अप करेगा, लाइसेंसर पे PNC काम करेगी आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द पायलट प्रोग्राम। तो ये 4 कंपोनेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 2 हमारे पास ऑलरेडी हैं, एजुकेशन है, मास्टर्स हैं, मास्टर्स के बाद सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसर। एक सवाल जो आप लोगों ने पूछा है डिग्री का, दुनिया भर में जहाँ जहाँ एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर है वो कोर्स तो मास्टर्स में करते हैं तो मास्टर्स की डिग्री मिलती है, लेकिन जॉब लाइफ में जाने के लिए उनको सर्टिफिकेशन एग्जाम देना ही पड़ता है। अगर वो सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे, बोर्ड जो भी मतलब बोर्ड बनेगा, तो फिर उनको क्रेडेंशियल्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज को हम जहन में रखें कि सिर्फ डिग्री के होने का मतलब ये नहीं है कि हमने एडवांस नर्स प्रैक्टिस कर लिया, मसलन लोग कहते हैं ना हम आगा खान से पढ़ लिए तो अब हमें प्रिविलेजेस दे दें, ये ऐसा नहीं है। उसके लिए पूरा सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। जी डॉक्टर साहब आप। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये बिल्कुल यानी एनालॉगस है डॉक्टरों की ट्रेनिंग के साथ। आपको MBBS मिलता है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप स्पेशलिस्ट बन गए। उसके बाद फिर आपको रेजिडेंसी ट्रेनिंग होती है, उसका इम्तिहान दिया जाता है आपको FCPS CPSP के थ्रू, जो कि अब उसकी बॉडी है। तो FCPS होता है आपका, FCPS में आप स्पेशलाइज करते हैं, फिर आप सब स्पेशलाइज करते हैं। तो उम्मीद ये है कि आगे चल के नर्सिंग का भी इसी किस्म का हो जाए, जहाँ पे आपने मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर लिया, क्लिनिकल ट्रैक में डिग्री मिल गई, मज़किया मतलब नहीं है कि आप APN बन गए। या उसके बाद जाके आपको पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड देन सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि इसके जो बोर्ड्स भी बनते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर जो नर्सेज इंटरनल मेडिसिन से होंगी उनका बोर्ड और इनकी एग्जामिनेशंस ये सब उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स ही ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं रह सकता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो डिफरेंट एक्सपीरियंस क्लिनिकली बता रहे हैं, किसी का पीट्स कार्डियक और उसमें मोर देन 6 years 5 years 7 years हैं, तो वो और रिसेंटली इन्होंने मास्टर्स भी कंप्लीट किया है, तो वो पूछ रहे हैं गाइडलाइंस, तो उनको भी इसी सेम प्रोग्राम से ही गुजरना होगा। So, चूंकि we have some criteria,
अगर आप वो क्राइटेरिया मेट कर रहे हैं, हम अभी मार्केट जब करेंगे तो क्राइटेरिया बताएंगे कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंस हमने पहले ही बताया कि हम इंटरनल मेडिसिन में मेडिकल, सर्जिकल, क्रिटिकल केयर कर रहे हैं, तो अगर आप पीड्स में जाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक हम ये प्रोग्राम करके पीड्स को ना ले आए, तो देन वी विल एबल टू डू। हम ये भी नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ इस प्रोग्राम के खातिर अपनी स्पेशलिटी चेंज कर दें। So you have to wait till this program successfully जो हो जाए, changes हो जाए, scale up हो जाए, तो we'll bring peds, we'll bring obs-gynae, we'll bring other areas as well, inshallah. Dr. Rubina, there is one very important and interesting question. We already made in Pakistan from so many years, 1 year specialized diploma program, which nurses who do diploma in nursing, midwifery, any specialization. So those people are asking that no matter whatever post-basic education they have done, whichever area, and they have been working, can they opt for this program or initially those who are masters prepared? Yeah, so वो जो specialize है ना, वो after bachelor's की specialization है, and this is not expansion of the roles. इधर हम मास्टर्स के बाद एक्सपेंशन ऑफ द रोल्स कर रहे हैं, यानी आपका जो रजिस्टर्ड नर्स का एक रोल है इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि उनकी क्रेडेंशियल्स हो जाएं। तो अगर उसका एक्सपेंशन का रोल उस बैचलर्स में नहीं मेंशन है, उस बैचलर्स में बेसिक्स रोल्स हैं, ये एडवांस रोल हैं, तो आप वो तो ऐड हो सकते हैं लेकिन आपको एडवांस रोल फिर भी करना पड़ेगा टू गेट APN. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवांस प्रैक्टिस नर्स. दिस इज नॉट अ बेसिक स्पेशलाइजेशन. Someone is asking another very interesting question, that those who have done bachelor's, they have not done masters in nursing, but they have done MSN. Can they be eligible for this kind of program? In any other market? Any other. In any? It is very difficult for currently now एकदम इस critical area में कि we should ask them to apply it, because ये तो बहुत मुश्किल होगा. Even जिन्होंने generic masters किया है उनके लिए भी, if they have not done 500 clinical hours, they have not done advanced pathology, advanced pharmacology, advanced जो है knowledge in clinical care, उनको भी हम नहीं ले सकते हैं फिलहाल के लिए. Then later on we can see that उनको किस तरह से हम enhance कर सकते हैं. But for the currently, मैं अभी बोले current, बाद में we can expand this role depend on the how successful we are. लेकिन इस वक्त जो है we are limiting to only those masters graduate who have graduated from clinical track. Dr. Saab, this is one important question because कि test PMDC लेगी या PNC. So can you also elaborate on the role of CPSP? So देखिए PMC और PMDC और PNC, PMDC क्यों लेगी ये टेस्ट? डॉक्टरों का तो नहीं है, ना डेंटिस्ट का है. So this is a nursing role. It has to be led by the nurses. This is not a role that is replacing doctors. This is enhancing patient care by creating a new cadre of healthcare workers. तो PMDC, PNC का तो वो तो मसला ही नहीं है उसमें, ठीक है. Similarly, CPSP का जो रोल है वो भी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स है. अभी नर्सिंग में चूंकि ये स्पेशलाइजेशन का मामला ही नहीं था पहले, या बोर्ड सर्टिफिकेशन का मामला ही नहीं था, तो कोई सर्टिफिकेशन बॉडी है नहीं अभी. That is what needs to happen. So PNC के साथ काम करके एक सर्टिफिकेशन बॉडी क्रिएट होनी चाहिए. अब immediately उसका शायद जरूरत नहीं है क्योंकि हम we are only talking about 6, 10, 12 people. पायलट है अभी, इससे हम सीखेंगे, इससे आगे जाएंगे. CPSP भी बहुत साल बाद आई, शुरू में पाकिस्तान 1950s 60s में शुरू हुआ ये, उससे पहले तो वो भी नहीं था. And so when you have enough people who are part of this role, who are working in this, only then would you start working towards creating the certification model.
एक जो क्वेश्चन है, बहुत सारे नर्सेज ने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है, कैन दे बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम? टुडे पीपल आर आस्किंग टफ क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन. उसकी बेसिक नॉलेज प्रोग्रेसिवली होनी चाहिए उसके साथ. और ये नहीं हो सकता कि हमने, एज आई वाज सेइंग, कि हमने एमबीए किया हो, मैं डॉक्टर हूं, मैंने एमबीए किया हो, अब मैं कहता हूं मैं एमबीए कर लिया, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बना दें. वो नहीं हो सकता. So there's a certain requirement for it. Nurses who've got masters in public health, there's a major role for them in public health, because nurses in public health are critically important. और जैसे डॉक्टर रफत बता रही थी कि पहले के वो प्राइमरी हेल्थ केयर में, in prevention of diseases, in health promotion, they are critically important. And so yes, so there's a role for that, and that's an important role, magar not in advanced practice nursing. एक क्वेश्चन आपका आया है कि ये कोटा बेस है फ्रॉम ईच प्रोविंस या मेरिट. AKU हमेशा ओपन मेरिट्स पे जाता है. वी बिलीव इन ओपन मेरिट्स एंड वी continue to be open merits, not on quota basis. So that's the answer. Now, since it's already, I think as Dr. Rubina has already made it clear that this is the first pilot program, and Dr. Bulgami also mentioned this is first pilot program of the country. And as you all know, AKU is a trailblazer. हर एजुकेशन डिग्री हमने यहाँ से स्टार्ट की थी. यानी वो ज़माना था जब हम फर्स्ट बैच में थे तो हम समझते थे सिर्फ डिप्लोमा ही है, कि जब आगा खान ने खुद खड़े रह के हमें बताया था, गर्ल्स यू हैव टू गो फॉर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर्स होगा, मास्टर्स होगा, डॉक्टरेट होगा, साइंस की लैंग्वेज सीखनी होगी. तो उस वक्त हम सोचते थे ये क्या चीज़ें हैं. और आज आप देखिए पूरे कंट्री में हम कहते हैं, अब मैं तो कहती हूँ ये कम्युनिकेबल डिजीज बन चुकी है और कोविड से भी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है हमारे कंट्री में. सो बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह हमने पहला कदम, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाया है ये प्रोग्राम बनाने के लिए और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और हम इसे पायलट कह रहे हैं. ये पायलट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिकल में भी ना पहले सीपीएस था ना कुछ था, तो यही पायलट चीजें थी जिन्होंने फिर आगे सीख के सिस्टम्स बनाने में हेल्प की. तो स्पेशलाइजेशन का सिस्टम जो अभी एग्जिस्टिंग है उससे बहुत डिफरेंट शेप का होगा, और ये एक नया सिस्टम भी यहाँ से उभर के आएगा. So we are taking first steps. So pilot is learning. We are so happy today. I see almost 211 participants across from Pakistan, and now 212 and abroad as well. So we are so happy. This is the first ever session of this project. I do understand, and we were reading, there's a lot of resistance we are hearing. So don't worry. This is exciting. Even resistance is very exciting, because resistance shows that change is coming. So you know what? I think we have today some people from University of Alberta who actually face this resistance. Inshallah, in future, we are going to invite those APNs who face directly those resistance and how they overcome through their education, through their certification, through their competences. तो ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है. So inshallah we are very happy, and soon you are going to hear next session of this series, Advanced Practice Nurses. I would like to thank you, Dr. Rubina, who is risk taker for this program and bringing out this program, and Dr. Bulgami, who is our partner. बहुत सारे लोग अंग्रेजी में तो कहते हैं partner of crime, but partner of new pathways and partners of innovations. And who knows, this partnership will bring
very fantastic thing and creating new history of nursing in Pakistan, inshallah. So I'm very, very grateful. Please stay tuned. Inshallah, in next series, we are bringing our Chief Nursing Officer, Ms. Khairunisa Huda, and we will try our best to bring somebody from outside. There are many alumni of Aga Khan University who are advanced nurse practitioner as well as clinical nurse specialist. And every time we are going to invite them to understand, you were asking many things today, role, job descriptions, how they are doing. So in coming series, inshallah, we are going to give answer to this question. Thank you very much. Khuda Hafiz, and inshallah, we will meet again. Khuda Hafiz.